ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف یوٹیوبر اور پوڈکاسٹر حافظ احمد صاحب. حافظ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صدائے رمضان میں. تھینک یو ویری مچ. ہمیں یہ بتائیے گا, بہت شکریہ, آپ کے خیال میں پاکستان میں فری لانسنگ کا مستقبل کیا ہے اور کون سی ایسی سکلز ہیں جن کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور سیکھنی چاہیے اور انہیں سیکھ کے نوجوان اچھی کمائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, فری لانسنگ کا جو فیوچر ہے وہ تو انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہے. اگر انٹرنیٹ اچھا رہے گا تو فری لانسنگ چلتی رہے گی, لوگوں کا کام چلتا رہے گا. باقی جہاں تک آپ نے سکلز کی بات کی ہے نا, یہ بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سکل آج کل ٹاپ پہ جا رہی ہے تو سارے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک دور تھا 90s کا, جب سارے کہتے تھے ہم نے ICS کرنا ہے, پھر 2001 2 3 4 میں سارے آئی کام کی طرف چلے گئے, تو ہم لکیر کے فقیر ایسے چل پڑتے ہیں. میری فیلڈ اب ای کامرس کے اندر مینلی امیزون ہے. میں امیزون میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت محنت کی, اپنے پیسے بھی لگائے, پیسے بھی ڈوبے, ٹائم بھی ڈوبا, کچھ نہیں کما رہے. اور میں ایسے گرافک ڈیزائنرز کو جانتا ہوں جو 30-40 لاکھ روپے لاہور میں بیٹھ کے کما رہے ہیں. انہوں نے آگے ٹیم رکھی ہوئی ہے, آن لائن سروسز دے رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسکل ٹاپ پہ ہے. سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. مثلا میں یہ بڑی میری ایگزامپل جو ہے یہ کافی زیادہ مطلب اب کہنے کے بہت پرانی ہو چکی, لیکن دوبارہ دے رہا ہوں. ہم لڑکے ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں. آپ اور میں ایسے ہیئر ڈریسر کو جانتے ہیں کہ جب بھی جائیں گے خالی بیٹھا ہوگا اور 100 روپے میں کٹنگ کر دے گا. لیکن ہم اس کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ ہم ویٹ کرتے ہیں 2-2 گھنٹے اپوائنٹمنٹ لے کے جاتے ہیں, 2000 بھی پے کرتے ہیں. اس کے پاس اسکلز اچھی ہیں. لڑکیاں بیوٹی پارلر جاتی ہیں. آپ ایسے پارلر والے کو جانتی ہوں گے جس کو جب کال کریں گے گھر آ کے کام کر دے گی. کیوں نہیں کرواتی سب لڑکیوں سے؟ مطلب ایک وہ لوگ ہیں جو اسے کروائیں گے, ایک وہ لوگ ہیں جو کہ نہیں جی ہم نے فلاں پارلر پہ جانا ہے, ادھر آپ پیسے بھی زیادہ دیں گے, ویٹ بھی کریں گے, اپوائنٹمنٹ لے کے جائیں گے. یہی کام ادھر. اچھی سروسز مل رہی ہیں. اگر آپ کے پاس اسکل اچھی ہے نا, سروسز اچھی ہے, تو آپ کوئی بھی سروس بیچ لیں گے. اگر آپ صرف لکیر کے فقیر بن کے کوئی ایک اسکل سیکھ لیتے ہیں, اس کے پیچھے چل پڑتے, تو پھر آپ پیسے نہیں بنا سکتے. کی بات کی ہے کہ لوگ 30-35 لاکھ کما رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر پایا جاتا ہے, جو گھر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا کام کر رہا ہے. تو فری لانسنگ ایک مکمل نوکری ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور نوکری کرنی چاہیے, ڈھونڈنی چاہیے؟ نہیں, لوگ تو اپنی نوکریاں چھوڑ کے یہ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو اس میں مزے کی بات بتاتا ہوں. ہمارا ایک دوست ہے ڈاکٹر اویس امین, وہ میو ہاسپٹل میں تھا 18 گریڈ پہ میڈیکل آفیسر. تو اس نے وہاں سے ریزائن کر کے اس نے کہا جی میں فری لانسنگ کروں گا. وہ پہلے کر رہا تھا اور اس نے فری لانسنگ سے اچھے پیسے کمانا شروع کر دیا. امیزون کی فری لانسنگ سے بہت ذہین ہے ماشاءاللہ, اس کی اچھی اسکل تھی, اس نے پیسے کمانا شروع کر دیے. اب جاب چھوڑ دی, گھر بیٹھ گیا. گھر والے پریشان ہو گئے کہ ہمارا بچہ نا کسی غلط کام پہ چل پڑا ہے, اس کے پاس پیسے بھی ہیں اور یہ کام بھی نہیں کرتا. اب گھر والے اس کے بیچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. انہوں نے کہا جی پنجابی میں کہ محنت کر کے پوری زندگی لا کے انہوں ڈاکٹر بنایا ہے, اے کر بیٹھ گیا. ادھر سے اس نے ریزائن کیا ہوا ہے. ایونچولی اس کو چند مہینے بعد کسی دوست نے مشورہ دیا کہ بھائی تو کوئی آفس بنا لے, صبح 9 بجے چلا جایا کر, شام 5 بجے آ جایا کر. جب اس نے آفس بنایا, گھر سے جانا شروع ہوا, تو اس کے گھر والوں کی جان میں جان تسلی کہ یہ واقعی کوئی کام کر رہا ہے. تو یہ کام ہے بیسیکلی, تو یہ کام ہے نا, آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی کام ہی کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا اس میں فراڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے نا. لوگ آپ کو آن لائن اپروچ کرتے ہیں جی ہمیں نا 5000 روپے رجسٹریشن جمع کرائیں, اس کے بعد آپ کو ایک لنک آئے گا, اس لنک کو فارورڈ کرنے کے لیے. یہ سب فراڈ ہے. فری لانسنگ میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ پراپر جاب ہے, صرف اتنا ڈفرینس ہے کہ یہ جاب آپ نے گھر بیٹھ کے کرنی ہے. فراڈ کے بھی نئے نئے طریقے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ٹوکن دے دیں گاڑی کا, 10,000 دے دیں, آپ آ کے دیکھ لیجیے گا. تو وہ بعد میں نہ بندہ ملتا ہے نہ بعد میں اس کا نمبر ملتا ہے. آپ صاحب آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ میں, تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان نوجوانوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ فری لانسنگ کے اندر کون سی ایسی غلطی ہیں جن سے بچنا بے حد ضروری ہے؟ سب سے پہلی غلطی یہی ہے کہ جب کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ آؤ کام کرتے ہیں, مہینے بعد پیسے ملیں گے, سب سے پہلی غلطی یہی کرتے ہیں لوگ. صحیح. اگر آپ فری لانسنگ میں آنا چاہ رہے ہیں تو اپنے مائنڈ میں رکھیں, اپنے آپ کو 6 مہینے 8 مہینے 1 سال دیں کہ میں نے محنت کرنی ہے اور کام کر کے پیسے کمانے ہیں. آپ کو کوئی بھی بندہ فری لانسنگ میں شارٹ کٹ دکھائے تو سمجھ جائیں کہ فراڈ ہے. کام سے مراد یہ, ابھی ہمارے سیگمنٹ ریکارڈ ہو رہا ہے, ہم لائیو ہیں, ریکارڈ ہو رہے ہیں ساری چیزیں. آپ کے پاس ایک ایڈیٹر بیٹھا ہے جو اس کو بعد میں اس میں اگر کوئی ایشو ہے تو اس کو ٹھیک کرے گا, اس کا تھمبنیل لگائے گا. اب چلیں, جو تھمبنیل لگائے گا لڑکا, جو اس کا تھمبنیل ڈیزائن کرے گا, کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وقت سنو کے آفس میں بیٹھا ہو؟ وہ اپنے گھر بیٹھ کے بھی تو تھمبنیل بھیج سکتا ہے. تو یہی فری لانسنگ ہے کام. آپ نے گرافک ڈیزائننگ کر کے دینی ہے, آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے, آپ نے کسی کو ویب سائٹ بنا کے دینی ہے, موبائل ایپ ڈیولپ کر کے دینی ہے, کام کر کے دینا ہے, لیکن گھر بیٹھ کے کر کے دینا ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بغیر کام کے, تو بغیر کام کے کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ بات کر لیتے ہیں, یوٹیوب پہ بات کر لیتے ہیں کہ آج کل ہر کوئی یوٹیوبر بننا چاہتا ہے اور ڈیلی لائف ولاگنگ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اور بے تحاشا پیسے کمانا چاہتا ہے. تو دیکھنے والوں کو بتا دیجیے گا کہ ڈیلی لائف ولاگنگ کے علاوہ مزید کیا کنٹینٹ بنایا جا سکتا ہے جس سے آپ پیسے کما لیں یوٹیوب سے؟ اچھا, یوٹیوب سے میں نے جو اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا نا ابھی تک, آپ کسی کے پرابلم کا سولوشن دیں تو سب سے زیادہ اس پہ ویورشپ آتی ہے.
अब या चाहे वो सेहत के हवाले से हो, चाहे वो वैसे कोई मतलब यंग जनरेशन के लिए स्टडी के हवाले से है, बाहर जाने के हवाले से है, वीज़ा के हवाले से है बिल्कुल, कि आपने हाँ। किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे करना है, एजेंट के पास ना जाएं, खुद से आपने फॉर्म कैसे बेशुमार फिल करना वीडियोस है। मिलेंगे आपको बिल्कुल, यूट्यूब पे। तो इस तरह की जो चीज़ है ना, उस पे अगर आप जाते हैं, ठीक है फैमिली व्लॉगिंग या कोई भी एक कंटेंट है, उसका ना एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद वो एंड हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम और सोल्यूशन, अब आप देखें ऐसे लोग जो हेल्थ पे बात करते हैं, तो हेल्थ में नए नए इश्यूज आते रहते हैं। तो आप किसी ऐसी चीज में जाएं जिसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, बजाय इसके कि आप एक ही चीज लोगों को डेली दिखा रहे हैं, उसमें एक टाइम आता है इंडियन लोग थक डॉक्टर जाते के हैं, जो चैनल्स हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी Teachers, मिसाल है। हाँ, हम देखें ना, बिल्कुल इंडिया में ऐसे ऐसे Content की podcasters life हैं बहुत जो ज्यादा है सिर्फ उनकी। डॉक्टर्स को कर रहे हैं और मिलियंस आप सब ये बता दें कि एक तो YouTube से अच्छी कमाई के लिए किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए और कौन सा कंटेंट ऐसा है जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है? अच्छा, फोकस जो करना चाहिए वो करना चाहिए कंसिस्टेंसी पे। अगर कोई भी बंदा ये समझे कि मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा, रात को मिलियन पे जाएगी, सुबह $10,000 अकाउंट में होगा, तो ऐसा तो नहीं होता। डेली आपको किसी जहद एक मुसलसल बंदे है। के साथ हो जाता है, अब उसको देख के वो किसी एक के साथ ही खासा जो हो गया। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब मैं अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं जी हमें कोई 5 टिप्स दे दें, 3 टिप्स बता दें यूट्यूब की 10। मैं कहता हूँ 1 लाख है और 1 लाख दफ़ा एक ही वर्ड है, कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनका कंटेंट बिल्कुल नॉर्मल है, कंसिस्टेंट रहे, आज अच्छे पैसे बना रहे हैं। और अच्छे कंटेंट वाले भी इस वक्त बिल्कुल डेड बैठे हैं कि उन्होंने 2-3 महीने के बाद कहा यार पैसे ही नहीं बन रहे, छोड़ अच्छा, देते हैं। पॉडकास्टिंग की बात कर लेते हैं, आजकल काफ़ी ट्रेंड है इसका। इस बारे में बताइएगा कि आजकल अगर हम पॉडकास्टिंग की बात करें तो कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर बात होनी चाहिए, या वो ट्रेंड पे हैं, अच्छे व्यूज़ आएंगे, लोग सुनेंगे? दुरानियां भी खास तौर पे कितना इसके अच्छा। अंदर बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन लोग जो सुनना चाहते हैं वो है किसी की पर्सनल लाइफ। हाँ, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उसके ऊपर आती है। ओहो, मसालेदार गुफ्तगू। हाँ, मसालेदार गुफ्तगू, चटपटी मसलन खबरें। अगर मैंने किसी बंदे के साथ 2 घंटे की पॉडकास्ट की है, जी। उसमें आधा पौना घंटा हमने कोई इल्मी बात की है, कोई तहकीकी बात की है, कोई अच्छी बातें की हैं, उस पे वो व्यूअरशिप नहीं आएगी जो उस अच्छा। क्लिप पे आएगी जिस पे हंसी मजाक हुआ है, या जिस क्लिप में बात हुआ है कि आपके पास गाड़ियां कितनी हैं, आपकी सैलरी कितनी है, पैसे कितने कमाते हैं, personal life में शादियां लोग कितनी हैं, घुसना बच्चे चाहते कितने हैं, लव मैरिज थी, अरेंज थी, इस पे व्यूज आते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे लोग ये देखना और सुनना चाहते हैं, लेकिन हमें ज़ाहिर पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, और अगर पॉजिटिव काम करें तो यकीनन उसकी भी एक ऑडियंस बिल्कुल, एक जाहिर है और उसको भी लोग देखते हैं, पसंद लत करते हमने ही हैं। लगाई है ना, तो अब अच्छे कंटेंट की भी लगानी है। बिल्कुल। अब सब जिस तरह आप बात कर रहे थे कि 2 घंटे से जायद का भी आइडियली कितना दुरानिया होना चाहिए पॉडकास्ट का? अब मैं अपने लिए जो है वो तकरीबन 1 घंटा 1 घंटे से ऊपर होती है मेरी पॉडकास्ट, लेकिन अच्छा। कुछ मेरी पॉडकास्ट 3.5 घंटे पे भी गई हैं, 2-2 ढाई घंटे की भी हैं। वो अब डिपेंड करता है कन्वर्सेशन कैसी चल रही है। यानी जब हम बैठते हैं तो हम ये प्लान करके नहीं बैठते कि हमने इसको 1 घंटा ही करना है। कन्वर्सेशन बहुत अच्छी जा रही है तो हम उसको खींच लेते हैं 1.5-2 घंटे पे। अब नहीं सब अच्छी अगर जा रही इतनी लंबी गुफ्तगू चल रही है तो फिर एक सवाल ज़हन में आता है ना कि इसके लिए तो पूरी रिसर्च भी है, जो गेस्ट आपके सामने बैठा आपको उसका सब कुछ पता होना चाहिए, आपकी पूरी टीम भी होनी चाहिए। यानी लोगों को तो नजर आता है ये 3-3.5 घंटे में हो गया जनाब, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है। तो ये बताएं कि जो पॉडकास्ट कर रहा है वो कोई और काम भी कर सकता है या इसी से फुर्सत नहीं है उससे? नहीं, अच्छी खासी फुर्सत भी होती है। अच्छा। क्योंकि मैं अपनी टीम को भी यहाँ पे क्रेडिट दूंगा, वो लोग काम करते हैं। आपकी तो टीम है ना, 2-3 घंटे में रिकॉर्ड करके प्रोफेशनल है, उठ उनकी जाता तो हूँ। हाँ। टीम्स है बहुत बड़ी, लेकिन जो दूसरे हैं जो नए आए हैं जिन्हें चंद माह हो गए हैं। हाँ, तो उसमें भी टाइम होता है, कोई इतना भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सारा काम है, ठीक है, आपने रिकॉर्ड करना है, उसके बाद एडिटिंग अगर आपने खुद करनी है, एसईओ आपने खुद करनी है, अपलोडिंग आपने खुद करनी है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप कोई और काम ना कर हाफिज साहब, इन्वेस्टमेंट कितनी है? आपको स्टार्ट में कितने पैसे लगाने पड़ते हैं माइक के लिए, कैमरा के लिए, उस कुर्सियों के लिए, टेबल के लिए? अच्छा, ये अगेन डिपेंड करता है। एक पॉडकास्टर है, उसका नाम नहीं लूँगा, उसने नाम इसलिए कि मुनासिब नहीं है बात, उसने 1 करोड़ रुपया लगाया था अपने सेटअप पे, और उसकी पॉडकास्ट नहीं चल सकी, वो खत्म हो गया, चला गया मार्केट से। और मैं ऐसे पॉडकास्टर को भी जानता हूँ जिन्होंने 50-60 हज़ार रुपये के नॉर्मल से माइक लिए शुरू किया और चल पड़े। ये कन्वर्सेशन पे और कंटेंट पे डिपेंड करता है। अक्सर लोग सिर्फ इसलिए नहीं शुरू कर पाते कि हमारे पास तो रोड के शोर के माइक्स नहीं है, हमारे पास सोनी के वो 4K या 8K कैमरा नहीं है। भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट अच्छा है तो बनाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता जब पैसे आएंगे उसी पैसे से आप फिर गैजेट्स भी बना लीजिएगा। तो गैजेट्स अच्छे होना जरूरी नहीं, यहाँ पे कंटेंट और कंसिस्टेंसी। अच्छा हाफिज साहब, अब तो मतलब मेरा ख्याल है आप किसी को कॉल भी करते होंगे, वो उससे मिस भी हो जाती होगी तो वो आपको खुद कॉल बैक कर लेता होगा। लेकिन पहले अगर हम शुरू की बात कर लें, चंद माह पहले की या साल पहले फिर चले जाएं, तो जब आप इस काम में नए आए थे तो गेस्ट अरेंज करना, उनको बुलाना, उनको कन्विंस करना, ये कितना मुश्किल था और फिर आपने इसमें महारत कैसे हासिल की? अच्छा, इसके अंदर भी मैंने पहले दिन ही कह लें या पहले महीने में ही ना एक बंदा हायर कर दिया था। अच्छा, मैनेजर हायर कर लिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ई कॉमर्स का काम कर रहा था, मेरा बिजनेस भी अच्छा था, सारे मामला ठीक थे। और मैं टीवी चैनल्स पे भी जब पॉडकास्ट शुरू किया है उससे पहले 4-5 साल से टीवी चैनल्स पे जा रहा था, तो मेरी कोई मुनासिब सी पीआर भी थी ऑलरेडी।
तो फिर जो मैंने मैनेजर हायर किया वो भी टेलीविजन इंडस्ट्री का हायर किया, एक अच्छे चैनल पे वो काम कर रहे थे, मैंने कहा आप मेरे लिए भी गेस्ट अरेंज कर दिया करें। तो शुरू में भी जब गेस्ट को जाती थी, शुरू में मुश्किल होती थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी करना होता है उनको जब वो मेरे पुराने को लिंक्स भेजते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पे एग्री हो जाते हैं, वो आ जाते हैं पॉडकास्ट। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है। पॉडकास्ट के हवाले से भी हमें ज़रा ये बताएं मज़ीद कि कौन कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं, मतलब एक तो आपने बताया चटपटी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं लोग, पर्सनल चीज़ें सुनना चाहते हैं, और कौन कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जिनका नौजवान जो हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं इंतखाब करें तो वो जल्दी कामयाबी हासिल कर सकते हैं? जल्दी से मुराद हमारा ये नहीं एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के ज़ाहिर अंदर। है अपने आप को साल 2 साल तो देने होंगे। मेडिकल की फील्ड बहुत अच्छी है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर हों, आप किसी डॉक्टर को बिठा के कर लें, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी लोगों के प्रॉब्लम आते हैं, तो मेडिकल की फील्ड में मैंने देखा है कि व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हर बंदे को आजकल कोई ना कोई मसला तो है ना। हाँ जी। फास्ट फूड खाते हैं, सबको कोई ना कोई बीमारी है, और हर फिर अलामतें इतनी बता दी जाती हैं, हाँ, लगता है कि ये इनमें से 2-4 तो मेरे में लास्ट वो मेरे ख्याल है Symptoms ही आपके ऐसी दौर में भी शायद वही होगी। इंग्लिश की हमारी बुक थी मैट्रिक में या इंटर में, अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, हाँ एक वो स्टोरी थी पूरी, उसमें यही चलता था कि फिरता अस्पताल। वो जो बात सुनता था वो कहता था उसे ये लगता था बीमारी मुझ में मुझे है ये, जी जी। तो इस तरह की चीजें होती है, लेकिन एक दो चीजें जो हर बंदा चाहता है, हर बंदे के आजकल मसले हैं कि जी मेरा वजन बढ़ रहा है, वजन कैसे कम करना है। वजन कम करने पे 50 टोट के बता दें, लोग 50 के 50 सुन लेते हैं। मेरी स्किन खराब हो रही है, एक्ने का इशू हाँ है, जी, कैसे बिल्कुल, ठीक खाली करनी है। कामों बालों पे ही का। बहुत सारे जो है ना वो बन जी जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हाँ। पे रिसर्च करके काम किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, आप सब आप बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम करें, इसी तरह अच्छा कंटेंट क्रिएट करते रहें, हमें अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है, और जो थोड़ा सा कम स्टैंडर्ड का भी बना रहे हैं उम्मीद है वो भी बेहतर कर लेंगे, बेहतरी ले आएंगे आप बहुत से जैसे लोग लोगों हैं, को बहुत देख अच्छा काम कर के रहे हैं। आइडियलाइज करके। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, हाफ़िज़ अहमद साहब बता रहे थे कि किस तरह जो नौजवान हैं वो क्या यूट्यूब से और साथ ही साथ पॉडकास्ट के जरिए वो कौन से मौज़ूआत का इंतखाब कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, रोज ये बड़ा काम अहम आपने मैसेज करना है। है और मायूस नहीं होना। स्टार्ट में व्यूज नहीं समझाना अपने आएंगे, आप को। स्टार्ट में हो सकता है कि व्यूज ना आए, आप मायूस हो जाएं, लेकिन आपने साबित कदम रहना है और 1 साल मुसलसल काम करना है और आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। यही हमने आज सीखा हाफिज साहब और से। आपने इस पे अमल भी करना है। बिल्कुल।